Okay. Yes, ma'am. So now we will start. Yes. Okay. Then we will start the conversion of one form of a bearing into the other form. Okay. So for example, if the in a given data the whole circle bearing is given to you. Okay. So for example, अगर आपको 36 डिग्री एंगल दिया हुआ है, 36 डिग्री 20 मिनट का बेरिंग दिया हुआ है. ओके, ठीक है. सो एंड इट इज आस्किंग यू टू कन्वर्ट दिस साइज. बढ़ाती हूँ मैं. ओके, हाँ अभी दिखेगा. ओके, नाउ 36 डिग्री 20 मिनट इज द एंगल और इज द bearing is given to you and it is asked you to convert. ठीक है. तो as such no any idea is given कि convert into the other form. कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है वो नहीं दिया है. ठीक है. तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली देर इज नो एनी प्रीफिक्स or the suffix are given, so obviously this means it is in a whole circle bearing form and obviously we have to convert it into a reduced bearing. तो अपना जो एंगल है वो 36 डिग्री 20 मिनट है and in case of whole circle bearing we are always measuring the angle from the north direction. तो ये मेरा एंगल ऐसे आ जाएगा 36 डिग्री. So this angle will be a 36 degree. So 36 degree means this will come in the first quadrant. Okay, so this will come in the first quadrant. The notation of the first quadrant are, this one is the east and this one is the north. Okay, so for while converting it into a RB, so the prefix will be from which reference direction we are measuring the angle. So we are measuring the angle from north reference direction. So ये आ जाएगा n. ठीक है, पहले प्रीफिक्स आ जाएगा n. Then after that the angle will come. So angle कितना आ जाएगा? ये as it is, जितना दिया है उतना ही एंगल आ जाएगा. So the angle will be 36 degree 20 minutes. Okay, and in which direction we are measuring? We are measuring is towards the east direction. So ये आ जाएगा E. Okay, so we converted this WCB into a RB, into a reduced bearing or into a quadrantal bearing. ठीक है. Now suppose the next angle is given. Next angle is given, it is of it is more than 0 degree and less than 180 degree. So we will call, like suppose 178 degree angle is given with some minutes. ठीक है, 10 minutes. 178 degree 10 minute angle is given. Okay, as such no prefix and suffix are given. तो obviously ये जो given data है it is into the form of a WCB, whole circle bearing form में आया है. ठीक है, तो now we will convert it into a reduced bearing. तो ये जो 178 एंगल है वो कहाँ आएगा? we are measuring it from the north direction and 178 means this will come up to this. ये अपना होगा सर्वे लाइन जिसका एंगल मेजर किया. दिस इज द सर्वे लाइन, उसका एंगल आ रहा है ये 178 डिग्री 10 मिनट्स. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस इज कमिंग इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. Okay, then the second quadrant we are denoting the second quadrant in form in the form of south and east. Okay, so तो ये आ रहा है अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में. एंड अपना जो सर्वे लाइन है इट इज क्लोजर टू द साउथ डायरेक्शन. साउथ डायरेक्शन के क्लोजर है. ओके, इट इज नॉट क्लोजर टूवर्ड्स द north direction but it is closer towards the south direction. So we will start measuring the angle from south direction. तो ये एंगल अपना हो जाएगा S. S एंगल आ जाएगा, S से अपन मेजर करेंगे. ओके, एंड हाउ मच विल बी द एंगल? ये अपना एंगल होगा. वो कैसे मेजर करेंगे इतना एंगल? सो टोटल एंगल, दिस टोटल नॉर्थ साउथ एंगल इज 180 डिग्री.
सो 180 में से जितना भी अपना WCB है, सो दैट वी विल डिडक्ट. ओके, सो 180 डिग्री में से 178 डिग्री 10 मिनट डिडक्ट करेंगे. ठीक है, सो 1 हाउ degree मच इट 50 विल लेफ्ट? seconds. 1 Yes, degree correct. 50 minutes. Yes, correct. So it will remain it with 1 degree 50 minutes. ठीक है, ये हो जाएगा 1 degree 50 minutes. बट विच डायरेक्शन वी मेजर्ड? वी मेजर इट्स टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन. तो ये आर बी आ जाएगा ई. ओके, सो प्रीफिक्स विल बी एस एंड द सफिक्स विल बी ई. ठीक है, लाइकवाइज वी मेजर दिस टू एंगल. नाउ वी विल स्किप दिस थर्ड क्वाड्रेंट, डायरेक्टली वी विल मूव टूवर्ड्स द फोर्थ वन. तो अगर फोर्थ में मैंने कुछ तो एंगल लिया है, ठीक है, सो फोर्थ में एंगल लिया है, सपोज मैंने लिया है 290 डिग्री. ये एंगल मैंने लिया है 290 डिग्री. ओके, विदाउट एनी यू कैन से कि 0 मिनट्स, विदाउट एनी मिनट्स या और 0 मिनट्स. सो 290 डिग्री का मैंने एंगल लिया है. सो 290 डिग्री, सो इट विल कम इन दी कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये अभी 290 है तो Fourth quadrant. Fourth quadrant. करेक्ट, इट विल कम इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो इट विल कम क्लोजर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन. सो वी नीड दिस एंगल टू रिप्रेजेंट आवर सर्वे लाइन. ओके, ये एंगल चाहिए. तो ये एंगल कैसे मिलेगा? पूरे 360 में North से 70 degree. या अब पूरे 360 में से आपका जो 290 का एंगल है वो डिडक्ट करना है. ठीक है, तो North पूरे 70 west. ओके, तो कितना आता है 360 माइनस 290? North North 70. 70 west. 70 डिग्री आएगा. ओके, सो 70 70 डिग्री एंड 0 मिनट. एंड द प्रीफिक्स क्या आ जाएगा? नॉर्थ, बिकॉज वी आर मेजरिंग इट फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन. सो प्रीफिक्स विल बी अ नॉर्थ एंड वी आर मेजरिंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. ये आ जाएगा वेस्ट डायरेक्शन. सो वी आर मेजरिंग टूवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन. तो सफिक्स आ जाएगा अपना W. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कन्वर्टेड आवर WCB into RB. Hope you understand how we converted these all. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now we will Yes, we ma'am. will see how. Thank you. Now we will see how to convert this RB into WCB. ठीक है, तो सपोज वी हैव गिवन विद द, ये अपना ईस्ट डायरेक्शन है. Okay, in the exam we have given with the angle south 30 degree 50 minutes west. ठीक है, so south 30 degree 50 minute west is given. So south and west, that means it is coming in the third quadrant. तो south and west आता है अपना third quadrant में. ये आ जाएगा अपना east, north, west and south. ओके, साउथ एंड वेस्ट दिया है तो ये आ जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में. एंड आवर सर्वे लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द साउथ एक्सिस. तो ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा साउथ एक्सिस से. ठीक है, तो नाउ आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू अ WCB. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? सो वी नीड टू मेजर दिस सर्वे लाइन एंगल फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन. तो ये नॉर्थ डायरेक्शन से मुझे मेरे सर्वे लाइन का एंगल मेजर करना है. ठीक है, सो व्हाट शुड आई हैव टू डू टू गेट दिस मच ऑफ एंगल? 180 degree plus 30. So I have to add 180 plus plus 50. angle. given angle. Okay,
तो ये आ जाएगा 210 degree 50 minutes. करेक्ट 210 डिग्रीज 15 minutes. 15 नहीं 50 50 50. 10 50 minutes. yes 50 minutes. Some numericals are displayed on the screen. Please try to convert the first question. Please try to solve the first question. In that the some bearings are given. ठीक है, तो आपको अगर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में नहीं दिया तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियसली द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट बेयरिंग्स आर इन अ फॉर्म ऑफ अ WCB होल सर्कल बेयरिंग के फॉर्म में दिए हुए हैं. ठीक है, प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द reduced bearing or a quadrantal bearing. First, who solved this? Ritik. Ritik, please tell me about the first answer. North 22 degree 30 minutes east. Okay, and ये real bus कौन है? मैं हूँ मैम, अजय भोसले. अजय, तो फिर नाम से लिखना रे, समझ में आएगा ना. ठीक है, सेकंड का आंसर बता दे. मैम 23 डिग्री सेकंड का 22 डिग्री का सही 40 मिनट. एक सेकंड, someone is having a doubt on the first question. Yes, Trupti. वो बोला ना 22 डिग्री 30 मिनट्स. इट्स 23 डिग्री ना. Yes, it's 23 degree 30 minute. उसने वही बोला. Yes, ma'am. 23 degree 30 minutes. 23 degree 30 minutes, and the prefix is north, and the suffix is Northeast. So and 23 degree 30 minutes east. ठीक है? The answer of the first question. ठीक है. Then next, real buzz. बताओ आप. Yes, 40 degree 54 minutes. Yes, 40 degree 54 minutes. Yes. एक मिनट. Yes, 40 degree 54 minutes. 54 minutes. Yes. Yes. 49. No, it is 40 And degree. 49 degree 6 The minutes. answer is correct. Whatever the answer given by him is correct. 40 it is S 40 degree 54 minute west. So everyone got this answer? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Then we will move towards the next. It is 3:28 degree 12 minutes. North 31 degree 48 minute कौन west. बता रहा है? अक्षय बता रहा है. अक्षय, okay, tell me. हाँ. North 31 degree 48 minute west. 31 degree 48 minute west, north west, correct. So the answer of the third question is N 31 degree 48 minute west W. ठीक है, मैंने आंसर लिखे नहीं है तो मे बी अभी कैलकुलेट करके ही चेक कर रहे हो. सो इट इज करेक्ट. N 31 degree 48 minute W. ठीक है. Then next, the last one. South 0 degree 20. South 20 minutes. 20 minutes. South It 20 is a minutes. little 20 bit minutes. confusing because it is exactly showing the value of 180 degree, but it is exceeded by a 20 minute from 180 degree. Okay, तो 180 को 20 minutes से exceed किया है, so obviously it will come into the third quadrant. So what will be the answer for this? South 0 degree 20 minutes. South 0 degree 0 degree 20 minutes west. Yes. correct. So the answer of the fourth question is S 0 degree 20 minute W west. ठीक है, understood this, how to convert it into a RB reduced bearing? Yes, ma'am. ठीक है. Now we will move towards the next question, second question. Convert this RB into a WCB. Ma'am, first answer is 12 degree 24 12 seconds. degree 24 minutes. Correct, 12 degree 24 seconds. Then Second second answer 24 minutes. 148 degree degree 24 minutes. 148 24 minutes. seconds. 34 S minutes. and east. 24 minutes. Okay, so that means it is coming in the second 148 degree, 34 में से minutes. आपको ये माइनस 31 डिग्री 180 में से माइनस करना है. Am I right? So 180 Yes, degree, ma'am. Yes, ma'am. 31 degree 30 seconds minus here.
Yes, ma'am. 6 seconds. So you got the answer. It has a 148 degree 24 minutes. Yes, ma'am. Okay. So everyone got this answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So if still anyone is having a doubt, then please ask me. It is in the quadrant SW. That means it will come into the third quadrant. So third quadrant. 246 degree 6. 201 degree 54 second. 246 degree 6 minutes. Ma'am, 328 degree 12 minutes. अभी ऋतिक रियल बस कौन है एंड साक्षी प्लीज दो अब बोलो मत अभी आई विल आस्क टू समवन एल्स ठीक है ठीक है गायत्री 248 degree 6 minutes. मुझे कैसे सॉल्व किया वो बता 201 degree. नहीं आई एम आस्किंग टू गायत्री Ma'am, it is in third quadrant. So 180 plus 68 degree 6 minutes. We get 248 degree 6 minutes. नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो व्हाट वी हैव टू डू देन Plus 180. yes we have to add 180 Add 180. angle W into RB. correct 180 plus 68 degrees 6 minutes Yes, ma'am. तो आंसर बताओ फिर 248 degree 6 minutes. yes correct 248 degree 6 minutes so everyone understood how we did it Yes, ma'am. okay thank you then Hasari tell me this last one Hasari Yes, ma'am. yes tell me the last one नाही येत आहे. का नाही येते काय नाही समजलं Hasari 275 degree 42 minutes है का? like tell me how you did it tell me the process how you found out that Ma'am, 270 plus 5. 270 plus 5 Fourth quadrant. Yes. No, ma'am. 354. Ma'am, 80 minutes. 354 degree 18 minutes. Ma'am, 354 degree 18 minutes. everyone please stop whether I answered that question I'm just asking her Hasari का नाही जमत आहे तुला नाही समजलं का कन्वर्जन बरं ठीक आहे सी हियर तू जो कर रही थी ना तो तू कर रही थी you are adding that angle into you are measuring that angle from the north and you are adding only 270 तो 270 से नहीं है एक सेकेंड तूने जो किया ना Yes, वो ma'am, मैं it's 355 something ना? Ma'am, 354. yes thank you Trupti but let me clear her doubt then we will see the answer of this fourth one ठीक है Okay, sorry, ma'am. हाँ थैंक यू तो अभी देख Hasari are you there Yes, ma'am. okay so every time we have to measure the angle from north and south ठीक है तो नॉर्थ एंड साउथ से अभी ये जो फोर्थ एंगल दिया है दैट इज NW so NW means it is coming in the fourth quadrant एंड जो एंगल आ रहा है 5 डिग्री आ रहा है 5 डिग्री मीन्स ये मेजर किया है एंगल एक मिनट में आपको देख तो जो एंगल दिया है 5 डिग्री NW दिया था ठीक है सो NW N 5 डिग्री कुछ तो मिनट दिया था अपन 20 मिनट कंसीडर करते 5 डिग्री 20 मिनट वेस्ट ऐसे कुछ तो न्यूमेरिकल दिया था ठीक है सो नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ एंड वेस्ट सो इट इज कमिंग हियर
ओके ऐसे कुछ तो आ रहा है एंड द एंगल इज 5 डिग्री, ये 5 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है, ये 5 डिग्री है बिकॉज एवरी टाइम वी हैव टू मेजर द एंगल्स आइदर विथ नॉर्थ और विथ साउथ, ठीक है। तो 5 डिग्री दिया है तो ऑब्वियसली ये साउथ नॉर्थ से ही मेजर किया होगा, वैसे तो नहीं करने क्योंकि अपन को एंगल हमेशा नॉर्थ एंड साउथ से मेजर करना है। सो दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द साउथ डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ दैट एंगल इज 5 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। तो मुझे इसका WCB निकालना है, WCB मीन्स यहाँ से पूरा यहाँ तक का मुझे एंगल निकालना है। सो एज आई नो दैट द होल सर्कल इज ऑफ 360 डिग्री, सो 360 में से मैं ये 5 डिग्री डिडक्ट करूंगी, इतना पोर्शन, ओके। तो मुझे ये फिर रेड कलर का पूरा एंगल मिल जाएगा, ओके। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट 360 माइनस 5 डिग्री, ठीक है। सो हाउ मच इट विल कम, 355 degree. 355 degree. Okay, so is 40 it correct? Everyone got the same one? No, ma'am. 354 degree 18 minutes. हाँ तो 354 डिग्री 40 मिनट्स। नहीं, मिनट में कुछ तो चेंज है क्योंकि मिनट मैंने वो अकॉर्डिंग टू दैट नहीं लिए, बट 5 डिग्री 20 मिनट्स के लिए जो हसारी बोल रहे उतना ही आएगा ना। Yes, ma'am. 354 degree 18 minutes. 40 minutes. 354 degree 18 minutes. 354 degree. 354. 354 degree 14 Ma'am, minutes. 354 degree 18 minutes. Okay, 354 degree 18 minutes. हाँ, yes ma'am, it's the right answer. 4 degree 18 minute is the answer of given हाँ. question. ठीक है? And what is the answer of this one? Which is 180 degree 20 minutes. एक second, I will share that one more time. Yeah, this one. What is the answer of this one? N 5 degree 20 minute west. This one. इसका आंसर क्या आएगा WCB में? 354 degree 18 minutes. 354 डिग्री 18 मिनट्स था। हसन हाँ. आपने उतना ही बोला ना मुझे? ठीक है, तो ये जो अभी फिर से आपके कैलकुलेशन में गलती हो रही ना, इट इज बिकॉज ऑफ कैलकुलेटर पे आपको डिग्री सिंबल कहाँ प्रेस करना है वो पता नहीं है। डिग्रीज आर गिवन, डिग्री 40 मिनट्स आएगा ना? Yes, ma'am. Yes, It will ma'am. be 354 Yes, ma'am. 40 minutes. 354 degree 40 minutes आएगा 40 मैम, minutes. और there are 60 minutes करेक्ट total. 40 मिनट्स आएगा, ठीक है। तो हसारी यू गॉट दिस आंसर? हसारी Yes, ma'am. okay, thank you. चलो, now we will move towards the next one. Then next. So now we understood how to convert the whole circle bearing into a reduced bearing and how to convert the reduced bearing into whole circle bearing. Either we have to add it into 180 या फिर 360 में से डिडक्ट करना पड़ता है. So these are the formulas, general formulas are given according to the quadrant wide, but no need to mug up these formulas. We can directly find out from the diagrams. Okay, तो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप. It is not necessary. आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो. We will move towards the next one. Now next term is fore bearing and the back bearing. So fore bearing, now bearing means what? It is the angle. So angle measured angle of that survey line is called as a bearing. तो suppose कोई भी एक line है जिसका name we have given it as a to B.
AB is the name given, which is shown in on the screen. So the line which is having a name A to B. So आवाज बहुत इसमें कम से आ रही है. इसमें से दो एंगल्स आ जाएंगे. वन एंगल विल कम एट द A point and the second angle as a phi, which is shown in the diagram. So second angle is in form of a phi will come at the B point. तो यहाँ दो एंगल आते हैं. ठीक है. सो उसमें से एक एंगल होता है फोर बेरिंग एंड द सेकंड एंगल होता है बैक बेरिंग. तो फोर बेरिंग मीन्स द एंगल विच वी मेजर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज अ फोर बेरिंग. ओके. तो सर्वे लाइन के प्रोग्रेस में मीन्स हमेशा जो अपन नोटेशन देते हैं इट इज फ्रॉम द इट इज इन अ असेंडिंग ऑर्डर. तो जैसे आप पहले ए पॉइंट का सर्वे करेंगे, देन बी पॉइंट का, देन सी पॉइंट का, लाइक दैट. ओके. सो अपना सर्वे का प्रोग्रेस कहाँ से जा रहा है? मैम ए से बी. यस मैम तुमचा वॉइस ब्रेक होतोय. वॉइस ब्रेक होतोय. हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी आ रहा है क्या मेरा आवाज? यस मैम. यस मैम. ओके. सी, तो एक जो लाइन होता है, एक लाइन को दोनों साइड से एंगल्स आते हैं. फर्स्ट एंड पे भी एंगल आएगा, सेकंड एंड, लास्ट एंड पे भी. मींस फर्स्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे दोनों जगह पे आपको बेरिंग्स मिलते हैं एज शोन इन द डायग्राम. ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. ठीक है. तो उसमें से एक होता है फोर बेरिंग एंड एक होता है बैक बेरिंग. ठीक है. तो फोर बेरिंग किसको बोलेंगे? द एंगल और द बेरिंग इज मेजर्ड टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन इज कॉल्ड एज अ फोर बेरिंग. सो प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन मीन्स हमेशा अपन पहले सर्वे करेंगे ए पॉइंट का, उसके बाद सर्वे करेंगे बी पॉइंट का, देन सी पॉइंट, देन डी पॉइंट. दैट मीन्स द प्रोग्रेस ऑफ आवर सर्वे इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स द डी. ठीक है. सो उसी डायरेक्शन में अगर आपने एंगल मेजर किया देन दैट विल बी योर फोर बेरिंग. तो यहाँ एक के जगह पे एंगल आपका इंस्ट्रूमेंट होगा ए पॉइंट पे. ओके. एंड आप ऑब्जर्व करोगे बी पॉइंट. ओके. मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे. तो वो होगा आपका फोर बेरिंग. तो यहाँ जो आपको एंगल मिलेगा वो होगा फोर बेरिंग. तो थीटा जो आ रहा है ए पॉइंट के यहाँ वो होगा फोर बेरिंग. Or the second definition of this is as when the bearing of the line is measured from the initial point towards the final point of the line, then it is known as a four bearing. Okay. तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ अगर एंगल मेजर किया है देन दैट इज कॉल्ड एज अ फोर बेयरिंग. ठीक है. तो जहाँ यह ए बी लाइन का ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा है, द इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट. इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा यहाँ? कंपास. ओके. सो कंपास इज यूज्ड फॉर द एंगल मेजरमेंट and we kept that compass on the A point and we are observing or we are bisecting the B point. ठीक है. Through that compass. So the angle which we will get on the compass at A point will be the four bearing. Similar way, if we kept the compass on the B point and we are bisecting the A point, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं? अपन खड़े हैं B point पे और अपन बाइसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट. ठीक है. दैट मीन्स आवर प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन इज ए बी सी डी ऐसे था, ए टूवर्ड्स बी था, बट वी आर मूविंग अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन. ओके. बी पे खड़े और ए को बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स वी आर मूविंग अपोजिट और वी आर सर्वेइंग द लाइन अपोजिट टू द प्रोग्रेस ऑफ लाइन, प्रोग्रेस ऑफ सर्वे. ठीक है. सो वो आ जाएगा आपका बैक बेरिंग. ओके. ये डिफिकल्ट लग रहा है? देन यू कैन मेंशन इट लाइक दिस. व्हेन द बेरिंग ऑफ द लाइन इज मेजर्ड फ्रॉम द फाइनल पॉइंट, तो बी पॉइंट होगा फाइनल पॉइंट टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट, दैट इट इज नोन एज अ बैक बेरिंग. ठीक है. तो एक लाइन को हमेशा दो एंगल्स आते हैं, दो बेरिंग्स आते हैं. ठीक है. नॉर्थ डायरेक्शन से जो आप एंगल मेजर करते हो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो वी विल गेट द टू एंगल फॉर वन लाइन. So when we are measuring the angle from initial point towards the final point, then that angle we will call it as a four bearing. तो ये होगा four bearing. And when we are measuring the angle from final point towards the initial point, then this angle we will call it as a back bearing. ठीक है. तो ये होगा फोर बेरिंग, ये होगा बैक बेरिंग.
नाउ वी विल सी फॉर द नेक्स्ट लाइन, CD लाइन के लिए देखेंगे, ठीक है। तो CD लाइन पे सपोज आई मेजर द एंगल, माय इंस्ट्रूमेंट इज ऑन अ D पॉइंट एंड आई एम बाइसेक्टिंग द C पॉइंट, ठीक है। So the phi will be, the phi is shown in the diagram will be the back bearing, क्योंकि मेरा सर्वे लाइन का प्रोग्रेस क्या होगा, C towards D होगा, ठीक है। But my instrument is on a D point and I am bisecting the C point, so phi will be my back bearing, ठीक है। And I am standing over, suppose I kept my instrument on the C point and I am bisecting the D point, तो वो केस में मैं एंगल मेजर कर रही हूँ टूवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन, मीन्स फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टूवर्ड्स द फाइनल पॉइंट में एंगल मेजर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट अभी C पॉइंट पे है। कंपास आई केप्ट इट ऑन द C पॉइंट एंड आई एम बाइसेक्टिंग द D पॉइंट, सो एंगल आई गॉट एट द C पॉइंट विल बी द 4 बेरिंग। सो ये केस में मेरा थीटा होगा 4 बेरिंग। अंडरस्टूड? 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग। येस मॅम. मग आपण मेजर करताना होल सर्कल बिअरिंग घ्यायचं असतं ना? यस, हमेशा होल सर्कल बेरिंग से ही मेजर करते हैं अपन, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। and the relation between this 4 bearing and back bearing is given over here। तो हमेशा ये डिफरेंस आपका, ऑब्वियसली आपका ये एंगल अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो द लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो बैक बेरिंग आपका हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। यह दिख रहा है। सपोज आपका अगर लाइन अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में से पास हो रहा है, तो नेक्स्ट एंड पॉइंट उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सो द ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज 180, ठीक है। तो यहाँ फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस थीटा, या फिर फाई इज इक्वल टू थीटा माइनस 180 डिग्री। सो डिफरेंस बिटवीन दैट 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज ऑलवेज बी अ 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन। तो आपको मे भी पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग। सो इट इज ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन 4 बेरिंग एंड बैक बेरिंग इज 180 डिग्री, ठीक है। Understood what is mean by 4 bearing and what is mean by back bearing? Yes ma'am. Okay. Ma'am. Yes, Rohit. Ma'am, can you show that numerical slide once again? I just wanted to see WCB and RB के लिए? Yes ma'am. Okay. 1 second. Yes ma'am, this one. You want to take a screenshot? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am, done. Thank you. Okay. ठीक है। So everyone understood the meaning of 4 bearing and back bearing? Yes ma'am. ठीक है। So this 4 bearing and back bearing will help us to find out the included angle. Included angle means angle made by 2 lines. तो वो angle made by 2 lines जो internal angle जो होता है, so that we can find out if we have a 4 bearing and back bearing of that lines with us. So that we will see in the next lecture, ठीक है। So ये included angle आपको find out करना है। So suppose AB का आपको 4 bearing दिया है and AC का आपको 4 bearing दिया है θ2, ठीक है। दोनों का आपको आपके पास 4 bearing आता है। So θ2 में से अगर आप θ1 माइनस करोगे तो आपको अल्फा का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। सो दिस अल्फा विल बी द इंक्लूडेड एंगल मेड बाय अ BAC और AB एंड AC लाइन, ठीक है। AB एंड AC लाइन का जो इंक्लूडेड एंगल है, सो दैट वी विल गेट इट फ्रॉम द जस्ट डिडक्टिंग द 4 बेरिंग ऑफ वन लाइन फ्रॉम द 4 बेरिंग ऑफ अदर लाइन, ठीक है। सिमिलरली we can find out the included angle of the